Hello and welcome. In the last class, we had discussed regarding what is democracy and why democracy in the part 1 video. Now I am going to present the second part of this video. The caption of the topic is what is democracy and why democracy. In the first part, students, you know that we discussed regarding the democratic exercises of different countries around the world. But in the true sense of the term, in the acid test, everything was proved to be a fiasco, a great failure, as many of the countries did not pass through the acid test of democracy. So now we are going to discuss the main definitions of democracy, the main characteristics of democracy in a nutshell. So what are the features of democracy? In a democracy, the final decision-making power must rest with those who elected by the people. That means decision-making power in a democracy must be done by the people who have been elected by the people. लोकतंत्र में, सत्ता में कोई निर्णय करने का अधिकार उसी को मिलना चाहिए जो कि लोगों के द्वारा निर्वाचित हुआ है. The second feature is a democracy must be based on free and fair election. As you have already known that the PRI party of Mexico, Institutional Revolutionary Party of Mexico, vied for many bad techniques, unfair techniques to get elected. Even the teachers canvassed for the candidates to the students. They pressurized. Even the teachers in Mexico, they canvassed, they pressurized the students to tell their parents to vote for the ruling party, PRI party, Institutional Revolutionary Party. So it was not free and fair election. Kwame Nkrumah and Robert Mugabe of Ghana and Zimbabwe respectively, they also vied for unfair practices to get elected. So democracy must be based on free and fair election, where those are currently in power have a fair chance to lose. That means now who is the ruling party may lose the election in the next election. It is the real test of democracy. The third feature is in a democracy, each adult citizen must have one vote and each vote must have one value. Unlike Saudi Arabia and Fiji and Estonia, there the votes of citizens are not are judged equally. The native citizens have more votes, whereas the people who came to the country later on, they did not have the same value of vote. So in a democracy, each adult citizen must have one vote and every vote should have one value. The next feature is a democratic government rules within limits set by the constitutional law and citizens' right. That means a democratic government once elected by the people has not got the license to do whatever it likes. It must perform according to the principles of the supreme laws of the land, that is the constitution. So in India, as you know, all the organs of the government, the executive, legislature and judiciary, they derive their power from the constitution. They cannot rule according to their own sweet will. वो अपने मनमाने ढंग से कभी शासन नहीं कर सकते. वो भारत के संविधान से अपना जो क्षमता है उसे आहरण करते हैं. The next feature is the opposition parties are allowed to function freely before and after the election. लोकतंत्र में ये जो विपक्ष दल जो है ये सरकार का विवेक का प्रहरी होता है. It is the sentinel of the conscience of the government. By opposing the government in every aspect and by just finding the loopholes of the government, the opposition is performing its assigned role. So the opposition party must perform its role because it is the conscience keeper of the ruling party. So the last feature is the democratic government are based on fundamental principles of political equality. That means in democratic government,
there is no principle of a primogeniture or co-personality. As there is no law of the succession of the son from his father, as it was the case with monarchy. राजतंत्र में राजा के मरने के बाद उसका बेटा राजा बनेगा, लेकिन लोकतंत्र में ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। लोकतंत्र में राजनीतिक समानता बरकरार रहता है और लोकतंत्र में जो प्रतिनिधियां लोगों के द्वारा निर्वाचित होते हैं वही निर्णय लेने का अधिकार प्राप्त करते हैं। डेमोक्रेसी इज सेड टू बी हैविंग मोर मेरिट्स। दैट मीन्स शेक्सपियर वंस टोल्ड दैट नथिंग इन दिस वर्ल्ड इज एन अनमिक्स्ड ब्लेसिंग। ये दुनिया में कोई भी चीज ऐसा नहीं है जिसका सिर्फ मेरिट्स होता है। मेरिट्स और डिमेरिट्स ये एक जो मुद्रा है उसका दो पार्श्व होते हैं। मतलब ये जो लोकतंत्र का भी कुछ गलतियां होते हैं, कुछ कमियां होता है, लेकिन लोकतंत्र में मेरिट्स मतलब अच्छाइयां ज्यादा है। व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी? ना डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज ए बेटर गवर्नमेंट। व्हाई? ना बिकॉज इट इज ए मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। The democratic government is basing on accountability. The elected rulers, the representatives who have been elected by the people are accountable for all of their acts of omission and commission before the people. If they do not perform their assigned role perfectly, then in the next election they may be discarded by the people. अगर वो लोगों के इच्छानुरूप काम नहीं किया तो अगले निर्वाचन में उनको सत्ता से बाहर किया जा सकता है, लोग उनको बाहर फेंक सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज डेमोक्रेसी इंप्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। लोकतंत्र में कोई निर्णय लेना इतना आसान बात नहीं होता है, इसीलिए लोकतंत्र को कभी लोग बोलते हैं कि ये रेड टेप है, जैसा कि ब्यूरोक्रेसी को बोलते हैं। मेंटेनिंग सो मच ऑफ ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज एंड मेंटेनिंग डिलेटरी टेक्निक्स मीन्स कोई भी काम को देर करना, ये लोकतंत्र का लोग मानते हैं कि लोकतंत्र में कोई निर्णय लेना इतना आसान नहीं होता है, वो धीरे धीरे होता है, क्योंकि वहां पर प्रिंसिपल्स ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस चलता रहता है और बहुमत प्राप्त करने पर वो निर्णय न्याय सिद्ध होता है, कानून में बदलता है। इसीलिए लोकतंत्र में जो कि निर्णय लेने में बहुत सारे लोगों को कंसल्ट किया जाता है, इसीलिए ये निर्णय सही होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स ए मेथड टू डील विथ डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। इट इज सुइटेबल द countries like India. India is having diversity of language, religion, cultures. Democracy in India made it possible to keep unity in diversity. जहां पर विभिन्न किस्म के लोग होते हैं, भाषा में विविधताएं, संस्कृति में, धर्म में, खान पान में, रहन सहन में, यहां तक कि ज्योग्राफी में भी डिफरेंसेस है। ये सब जो प्रभेद है, ये सब जो अलगावपन है, उसको एक साथ में बांध के रखने के लिए लोकतंत्र ही सही शासन का पद्धति हो सकता है। इन ए डेमोक्रेसी नो वन इज ए परमानेंट विनर और लूजर। लोकतंत्र में आज जो विपक्ष में हो, कल वो शासक भी बन सकता है। आज जो विपक्ष दल में है, कल वो शासक दल में रह सकता है। आज जो शासक दल में है, कल वो विपक्ष भी बन सकता है। इसीलिए लोकतंत्र लोगों का तंत्र होता है और सबसे बेहतर होता है। Democracy is better than other forms of government because it allows us to correct its own mistakes. लोकतंत्र में जो भूल होता है उसको सही किया जा सकता है। आदमी अपना गलतियों से सीखता है, इसी प्रकार लोकतांत्रिक सरकार अपना गलतियों से ही सीखता रहता है और उसको सही किया जा सकता है। लेकिन तानाशाही शासन में तानाशाह जो बोलता है वो बोलता है माइट इज राइट एंड द फ्यूहरर इज ऑलवेज राइट। नाजी जर्मनी में ये कहा जाता था कि हिटलर कभी गलत नहीं हो सकते, वो सदैव सही होते हैं। तो लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता है। इन डेमोक्रेसी द गवर्नमेंट is better because it can correct its own mistakes. Next is democracy enhances the dignity of the citizen because it is based on the principle of a political equality. In democracy, equality is the basic principle. So in our constitution, it has been told that equality of status and opportunity and to promote among them all. Means equality must be given to all and political equality is the hallmark of a democracy. So, we recognize
The poorest of the poor, the least educated as well as the illiterate, they have the same status as the rich and educated. Mukesh Ambani is the richest man of India. His vote and its value is equivalent to the value of XYZ, a poorest person. So, in a democracy, the dignity of the citizen, नागरिक का जो सम्मान है, जो व्यक्ति की गरिमा है, वो बरकरार रहता है लोकतंत्र में, अन्यथा अन्य किसी तंत्र में ये संभव नहीं है. But as I have told students that democracy is not free from demerits or drawbacks, because Shakespeare told that nothing in this world is an unmixed blessing. So, लोकतंत्र का भी कुछ कमियां हैं. ये कमियां क्या क्या है, चलिए इसके बारे में चर्चा करते हैं. लीडर्स कीप चेंजिंग इन ए डेमोक्रेसी, दिस लीड्स टू इंस्टेबिलिटी. लोकतंत्र में आप लोग जानते हैं, अमेरिका में राष्ट्रपति जब निर्वाचित होते हैं 4 साल के, भारत में 5 साल. तो 5 साल में कोई भी कदम उठाने के लिए, कोई भी कार्य करते करते 5 साल पूरा हो जाता है. अगर वो सरकार अगले बार निर्वाचित होकर नहीं आ पाता है, तो वो जो कार्य शुरू किया है वो सब अधूरा रह जाता है. For that reason only, the leaders are keep changing. This leads to instability in the government, and many of the plans and programs of the government are not materialized due to the fact that the leaders are keep changing. Democracy is all about political competition and power play. There is no scope for morality. Everything is right in politics, war and law, it has been told. So, डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में ये राजनीतिक संघर्ष चलता रहता है. क्षमता के लिए, सत्ता को हासिल करने के लिए एक कॉट थ्रोट कंपटीशन चलता रहता है. इसमें कोई मोरालिटी नहीं होता है. आजकल आप देखते होंगे विधायक और सांसदों का बेच जाना और खरीदना, ये खरीदारी और बेचना चलता रहता है. सो इट इज वेरी बैड. The third point is elected leaders do not know the best interest of the people. It leads to bad decision. The elected leaders sometimes they do not know what should be betterment or what should be better for the people, and many times also by knowing the interest of the people they do the opposite because for their own selfish interest. So it leads to bad decisions या निर्णय जो है सही नहीं हो सकता है कभी कभार. डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन फॉर इट इज बेस्ड ऑन इलेक्टोरल कंपटीशन. जो कि निर्वाचन में जो प्रत्याशियां खड़े होते हैं, निर्वाचन में राजनीतिक संघर्ष चलता रहता है और वहां पर जो दुर्नीति है, घूसखोरी है, ये चलता रहता है. इसीलिए लोकतंत्र में, जैसा कि हम आप लोगों को बताए कि यहाँ पर जो एमएलए एमपीएम का बेचना और खरीदारी ऐसा चलता रहता है. कभी कभी ये लगता है कि एक मार्केट है जहां पर बाइंग एंड सेलिंग चलता रहता है. इसीलिए ये बड़ी खराब चीज है लोकतंत्र का जो करप्शन है. नेक्स्ट, ऑर्डिनरी पीपल डू नॉट नो व्हाट इज गुड फॉर देम, दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग. अरिस्टोटल का जो पॉलिटिकल स्कीम जो था, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इसमें डेमोक्रेसी को उन्होंने परवर्टेड फॉर्म का नाम दिया था. मतलब लोकतंत्र को उन्होंने बोला था कि पॉलिटी अच्छा तंत्र है जिसमें सब लोग शासन करते हैं, और पॉलिटी का परवर्टेड मतलब खराब फॉर्म है डेमोक्रेसी. क्योंकि ऑर्डिनरी पीपुल जो है, लोग जानते नहीं है कौन उसका सही नेता है, कौन उसका सही प्रतिनिधि हो सकता है. लोग बहाव में आ जाते हैं, लोग हवा देखते हैं, किसी का हवा चलता है उसी के अनुसार लोग वोट दे देते हैं. तो इसीलिए ये अच्छा नहीं है, ये लोकतंत्र का एक बड़ी कमियां है. नाउ वी हैव टू गो फॉर द डिस्टिंक्शन बिटवीन डेमोक्रेटिक एंड नॉन डेमोक्रेटिक. सो बाय कंपैरिजन वी कुड नो द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ each form of government. What is the betterment of democracy and what is the demerits or drawbacks of non-democracy. So democracy is the best form of government as the rulers are accountable to the people and have to fulfill their needs. In a democracy, जो निर्वाचित प्रतिनिधियां हैं, जो शासक है, जो कि लोगों के द्वारा चुने जाते हैं, वो लोगों के हित के लिए कार्य करते हैं और लोगों के पास वो उत्तरदायी है, लोगों के समक्ष वो उत्तरदायी होते हैं. अगर वो अपने काम को सही तरह नहीं किया
तो अगली बार लोग उनको नकार सकते हैं। इन नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट द रूलर्स आर नॉट अकाउंटेबल टू द पीपल एंड देयर नीड्स। जो लोकतंत्र नहीं है वहां पर शासक लोगों के समक्ष उत्तरदायी नहीं होता है और उनके चाहत और जरूरत को पूरा करने के लिए बाध्य नहीं होता है। नेक्स्ट, इन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट पीपुल इलेक्ट देयर रूलर्स एंड हैव राइट इन डिसीजन। जहां पर लोकतंत्र होता है, लोग निर्वाचन में अपना प्रतिनिधि या शासक को निर्वाचित करते हैं। जो निर्वाचित बनता है, निर्वाचित होता है, वही शासक बनता है और वो लोगों के इच्छा अनुसार कार्य करता है और लोगों का विचार को देखकर, लोगों का आशा को देखकर और लोगों का चाहत को देखकर वो कानून बनाता है। बट पीपुल डू नॉट इलेक्ट देयर रूलर्स इन ए नॉन डेमोक्रेटिक, सो द पीपुल डू नॉट हैव एनी राइट ओवर द डिसीजन मेकिंग। तो सही है, लोगों का कुछ इसमें भागीदारी नहीं होता है, क्योंकि लोग अपना जो प्रतिनिधि है, अपना शासक जो है उसको निर्वाचित नहीं करते हैं। शासक अपने आप की अपने दम पर वो आ जाता है सत्ता में। नेक्स्ट पॉइंट रिगार्डिंग डेमोक्रेसी इज द पार्लियामेंट इज ए सेपरेट बॉडी एंड हैज नो इंटरफेरेंस ऑफ आर्मी। लोकतंत्र में पार्लियामेंट जो है, जो कि लेजिस्लेचर या विधायिका कहलाती है, वो लोगों के द्वारा निर्वाचित तो होता है। वो मिलिट्री या हमारा डिफेंस का शासन नहीं होता है। द पार्लियामेंट कैन नॉट पास ए लॉ अबाउट द आर्मी विदाउट द कंसेंट ऑफ चीफ ऑफ द आर्मी। जहां पर लोकतंत्र नहीं होता है, वहां पर आर्मी या हमारा जो डिफेंस फोर्स है, हमारा जो स्थल सेना है या जल सेना या वायु सेना है, उसके ऊपर कोई भी कानून बनाने के लिए उनका मुख्य के सहमति के बिना नहीं हो सकता है। लेकिन ये लोकतंत्र में नहीं है। लोकतंत्र में लोगों का जो मुखिया है, निर्वाचित प्रतिनिधि, जैसा कि भारत का राष्ट्रपति, वो 3 सेना बाहिनी का सुप्रीम कमांडर होता है। Any citizen can aspire to contest election for any post irrespective of his or her caste, religion, socio-economic and educational background, which means the right of vote is available to all the citizens. डेमोक्रेसी में सब लोगों को मत देने का अधिकार है, जो कि लोकतंत्र नहीं होने वाला राष्ट्र में नहीं होता है। डिफरेंसेस होता है। कभी कभार निर्वाचन का भी कोई अहम भूमिका नहीं होता है। Democracy is based on consultation and in democratic government people enjoy their rights of discussion. लोकतंत्र में सहमति की जरूरत है। लोकतंत्र में एक दूसरे के सुझाव की आवश्यकता होता है, यहाँ तक कि विपक्ष दल का भी सुझाव का जरूरत होता है, जो कि लोकतंत्र नहीं होने वाला या तानाशाही शासन में जरूरत नहीं पड़ता है। There are free and fair elections. Elections offer a choice and fair opportunity to the people to change the current rulers. लोकतंत्र में जो प्रतिनिधियां होते हैं, जो शासक है, उनको बदला जा सकता है। लेकिन जो लोकतंत्र नहीं, वहां पर शासक अपने दम पर सत्ता में वो जकड़ के रहता है। वो जब चाहता है सत्ता छोड़ता है, अन्यथा नहीं। देयर इज ए फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड पीपुल एंजॉय देयर फंडामेंटल राइट्स। जैसा कि भारत में लोग अपने आप को व्यक्त कर सकते हैं। देयर इज ए फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, freedom to move elsewhere, freedom to settle elsewhere, freedom to form associations. It is contained in Article 19, which is very important. धारा 19 में हमारा जो स्वाधीनता का या स्वतंत्रता के अधिकार है, ये बड़ा अहम भूमिका अदा करता है व्यक्ति स्वतंत्रता में। लेकिन ये लोकतंत्र जहां पर नहीं है, जैसा कि सऊदी अरब, जिम्बाब्वे में, लोगों का वही फंडामेंटल राइट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन नहीं हो सकता है, नहीं होता है। अब चर्चा करेंगे लोकतंत्र किस प्रकार का होता है। लोकतंत्र 2 प्रकार के हैं। एक है प्रत्यक्ष लोकतंत्र और दूसरा है अप्रत्यक्ष या इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट प्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष। व्हाट इज डायरेक्ट डेमोक्रेसी? ना, इट इज ए पॉलिटिकल सेटअप वेयर द पीपल देमसेल्व्स मेक द लॉज एंड पार्लियामेंट डायरेक्टली इन द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। मीन्स ये लोकतंत्र में लोग सीधा अपना कानून बनाते हैं। डिसीजंस आर टेकन ऑन द बेस ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ ओपिनियन। बहुमत जो बोलता है उसी के अनुसार निर्णय लिया जाता है। इट इज सुइटेबल फॉर द जियोग्राफिकली स्मॉल कंट्रीज विथ लेस पॉपुलेशन। जहां पर जो आबादी है, जनसंख्या है, कम है, वहां पर ये अच्छा हो सकता है। लेकिन जहां पर जनसंख्या ज्यादा है, ये कतई संभव नहीं। पिछले जमाने में ग्रीस में, रोम में और भारत में कुछ भी गणराज्य थे, जैसा कि गौतम बुद्ध ने जन्म लिया था शाक्य गणराज्य में। वहां पर
ये निर्णय ऐसे लिया जाता था जहां पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता था। अभी मॉडर्न पीरियड में स्विट्जरलैंड में ये चल रहा है कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी का जो इंस्ट्रूमेंट है, रेफरेंडम, इनिशिएटिव, प्लेबिसाइट और रिकल। रेफरेंडम मतलब कोई भी आम बात के लिए आम सहमति, आम राय लिया जाता है, लोगों ने जो बोलते हैं, अगर इसके खिलाफ बोलते हैं तो वो कानून नहीं होता है। प्लेबिसाइट का मतलब गण वोट होता है, सब लोगों का वोट होता है इसके ऊपर। रिकल का मतलब लोग जिसको प्रतिनिधि के तौर पर निर्वाचित किया है, अगर वो लोगों की आशानुरूप कार्य नहीं करता है तो लोगों का एक क्षमता होता है कि उसको रिकल मतलब वो वापस कर सकते हैं। ये व्यवस्था भारत में नहीं है। अभी मॉडर्न जमाने में सिर्फ स्विट्जरलैंड में डायरेक्ट डेमोक्रेसी के 4 इंस्ट्रूमेंट जो है वो चलते रहते हैं, जैसे कि रेफरेंडम, इनिशिएटिव, प्लेबिसाइट और रिकल। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्या है? इन मॉडर्न वर्ल्ड मोस्ट ऑफ द कंट्रीज आर फॉलोइंग द इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी बिकॉज आजकल पॉपुलेशन ज्यादा हो गया है, इसीलिए लोग जाकर प्रत्यक्ष रूप में शासन नहीं कर सकते हैं। और दूसरा चीज ये है कि सब लोगों का शासन में भागीदार होने के लिए योग्यता नहीं है, कुछ लोगों का इंटरेस्ट भी नहीं है। इसलिए ये बेहतर होता है लोग अपना प्रतिनिधि को एक सही समय के बाद, मतलब सही समय के अंतर में चुनते हैं। आफ्टर 5 years they elect their own representatives. Those who get elected, they are becoming the rulers if they achieve majority. So they are so sensitive to cater the needs and opinion of the people. भारत में जो निर्वाचित प्रतिनिधियां होते हैं वो लोगों की इच्छानुरूप कार्य करते हैं। इंडिया, फ्रांस, यूएसए, जर्मनी, अब यहाँ पर लोकतंत्र चलता रहता है। अब हम जो केस स्टडी लिए पाकिस्तान में, वहां पर लोकतंत्र होके ना होने के बराबर है। अभी मियाँ इमरान खान के जमाने में भी लोकतंत्र सही तरह नहीं है। चाइना में तो लोकतंत्र नहीं है, ये सब लोगों को मालूम है, वहां पर सिंगल पार्टी का मेजोरिटी रूल चलता है। मेक्सिको में इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी है, लेकिन लोकतंत्र होते हुए भी वहां पर लोकतंत्र का धज्जिया उड़ा जाता है। जिम्बाब्वे, जहां पर रॉबर्ट मुगाबे का शासन था, ऐसा स्थिति हुई कि रॉबर्ट मुगाबे को हटाने के लिए आर्मी को रास्ते पर उतरना पड़ा, तो यहाँ पर भी लोकतंत्र नहीं है। सऊदी अरब में आप लोग जानते हैं अभी लोकतंत्र नहीं है, वहां राजतंत्र चलता रहता है। As you already know, in Saudi Arabia there is no democracy because there is monarchy. The king is ruling over there. In Estonia, the minority Russians, they are not getting the actual rights. They are getting lesser rights than the original Estonians. In Fiji, the indigenous, the local Fijians, their vote is having more value than the votes of the Indian Fijians. The Indian Fijians who went to Fiji for doing some work there long years ago. So the case studies show that democracy is not proper in many of the countries of the world. So what is democracy in a nutshell? Let us explore that. In a democracy, major decisions are taken by the elected leaders. One person, one vote and one value. There is respect for individual rights. There is rule of law. There is free and fair electoral competitions. So in a democracy, these things are very much present, and without which democracy cannot be called as democracy in the true sense of the term. So let us go to the summary. On this chapter, we understand the meaning of democracy in a limited and descriptive sense. That means the exploration of a democracy is not exhaustive but limited. We described the case studies. We arrived at the general principles from particular example. So it is called as inductive method. That means we discussed the individual countries and their case studies and reached at the conclusion how democracy should be. And on the basis of those descriptions, we derived our basic and general principles of democracy. We understood democracy in a form of government. The most common form that democracy takes in our time is the representative democracy. In a democracy, where people should rule over themselves is not the case. Rather, people choose their representatives, those who rule on behalf of the people by getting their mandate. So,
majority is allowed to take decisions on behalf of all the people. That means the majority party follows the government and it takes decision on the basis of the desires, expectations, and will of the people. So, in democracy, it is the majority party rule. But majority community means people, they do not rule directly. Why people are choosing indirect democracy or representative form of democracy? The reason is modern democracy involves large number of people. So it is physically impossible for all of them to sit together at a place and take collective decision. Take example in India, the number of voters could be near about 90 crore. So it is not possible for 90 crore people to sit at a particular place to take decision. आज भारत की स्थिति ऐसा है, 90 करोड़ की जो वोटर है वो एक जगह पर बैठ के निर्णय नहीं ले सकते। इसीलिए हम प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र या रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी को अपनाए हैं। इवन इफ अगर भी ले सकते हैं, सब लोगों के पास समय नहीं है, सब लोगों के पास स्किल नहीं है और आग्रह नहीं है, सब लोग नहीं ले सकते, ये काम नहीं कर सकते। Even if the people wanted, so all citizens could not have the time, the desire, the skill to take part in the decision. For that reason only, democracy is nowadays converted into representative form of democracy. प्लाटो और अरिस्टोटल के जमाने में लोकतंत्र छोटे छोटे नगर राज्य जहां पर जनसंख्या ज्यादा से ज्यादा 5000 तक थी, वहां लिया जाता था निर्णय लोगों के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से, लेकिन अब ये संभव नहीं है। Now, before going to the conclusion, let us have a glance. What is the broader meaning of democracy? लोकतंत्र का विस्तारित अर्थ क्या है? वास्तव में डेमोक्रेसी तब आएगा जब कोई भी आदमी, कोई भी व्यक्ति भूखा पेट सोने के लिए नहीं जाएगा। Nobody should go to bed in a hungry stomach. In democracy, every citizen must be able to play equal role in decision making. सब लोगों को निर्णय लेने के लिए समरूप अधिकार मिलना चाहिए, सिर्फ वोट देने के अधिकार नहीं। सरकार के कामकाज में भी उनको निर्णय लेने का अधिकार चाहिए। एवरी सिटीजन नीड्स टू हैव इक्वल इंफॉर्मेशन। सब लोगों को सूचना के अधिकार चाहिए, सब लोगों को सूचना प्रदान किया जाना चाहिए। बेसिक एजुकेशन, मिनिमम एजुकेशन, शिक्षा का प्रावधान हो और सब लोगों को समरूप संसाधन मुहैया किया जाए और लॉट ऑफ कमिटमेंट, एवरीथिंग, ऑल द नेसेसिटीज ऑफ द पीपल शुड बी फुलफिल्ड। तो अगर ये डेफिनेशन को हम देखें, ये पॉइंट्स को हम देखें, सही मायने में आज विश्व का कोई भी राष्ट्र लोकतंत्र नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये सब चीज विश्व के सब राष्ट्र में जहां जहां पर लोकतंत्र है, ये कतई संभव नहीं है। सो ये कुछ केस स्टडीज दिया गया है आपके बुक में, इसको हम चर्चा करेंगे। ये कौन कौन से पॉइंट पर आता है? द किंग ऑफ भूटान हैज डिक्लेयर्ड दैट इन फ्यूचर ही विल बी गाइडेड बाय द एडवाइस गिवन टू हिम बाय द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। दैट मींस ये आता है मेजर डिसीजंस बाय द इलेक्टेड लीडर्स। जो निर्वाचित प्रतिनिधियां है वो मूल रूप से जो निर्णय लेने के लिए समर्थ है या ले पाएंगे। मैंने तमिल वर्कर्स हु माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया वर नॉट गिवन a right to vote in Sri Lanka. That means यहाँ पर लोगों का जो सही मायने में जो अधिकार है, ये अधिकार नहीं है। 1 पर्सन 1 वोट और 1 वैल्यू का ये जो अधिकार है वो नहीं दिया गया है। नेक्स्ट आता है द किंग ऑफ नेपाल इम्पोज्ड ए बैन ऑन पॉलिटिकल गैदरिंग्स, डेमोन्स्ट्रेशन एंड रैलीज। इसमें लोगों का जो राइट है, रेस्पेक्ट फॉर राइट्स, ये वायोलेट होता है। The Indian Supreme Court held that the resolution of Bihar Assembly was unconstitutional. That means here the rule of law has been violated. Political parties in Bangladesh have agreed that a neutral government should rule the country at the time of election. मतलब निर्वाचन के समय में एक निष्पक्ष सरकार शासन करना चाहिए। इसका अर्थ होता है फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन। सो इसी प्रकार लोकतंत्र का विस्तार जो है बहुत हो सकता है, लेकिन अब हम उसको लिमिटेड सेंस में, मतलब सिर्फ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में समझ रहे हैं। तो ये लोकतंत्र है,
जैसा कि अब्राहम लिंकन ने बोला था, डेमोक्रेसी इज ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल एंड फॉर द पीपुल, एंड इन डेमोक्रेसी एवरीबॉडी हैज ए शेयर, बोधा ने बोला था, सब लोगों का शेयर होना चाहिए। तो ये जो लोकतंत्र में शेयर की बात है, ये बात सिर्फ राजनीतिक अधिकार तक सीमित है। आज भी भारत जैसे देशों में सामाजिक और आर्थिक असमानताएं हैं। ये असमानताएं जब हटेगा तब लोकतंत्र सही मायने में आएगा। तो इसी के साथ ये चैप्टर का अंत होता है। नाउ वी आर गोइंग टू द कंक्लूजन ऑफ द चैप्टर। Once again, I appeal to all of my viewers to visit my YouTube channel, Durgacharan Nanda. They should subscribe it and press the bell icon so that I could be encouraged to post more and more educational videos. Till then, goodbye. Have a great day. Thank you very much.